این آر او پر آج بڑی عدالت لگے گی. 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. بیرون ملک کوئی جائیداد ہے اور نہ ہی بینک اکاؤنٹ. سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. لوگ پنجاب کی پسماندہ ترین تحصیل سے ہے. آج بھی میرے گھر میں بجلی نہیں ہے. بغیر بجلی کے رہنے والے وزیر اعلیٰ پنجاب ہواؤں میں اڑنے لگے. ہٹو بچوں کی صداؤں میں پاک پتن کا دورہ. دربار بابا فرید آمد سے 3 گھنٹے پہلے ہی مزار زائرین کے لیے بند. کفایت چاری کے دعوے ہیلی کاپٹر کی دھول میں اڑ گئے. شاہانہ پروٹوکول پر تنقید کے جکڑ میں چل پڑے. پنجاب کے صوبائی وزیر اطلاعات وزیر اعلیٰ کو لفظی پروٹوکول بھی دینے لگے. ہیلی کاپٹر استحقاق قرار. درگاہ بابا فرید سے زائرین کو نکالنے کی تردید کر دی. وزیر اعلیٰ نے دکانیں بند کرانے کی تحقیقات کا حکم دے دیا. فیاض الحسن چوہان کی دنیا نیوز سے گفتگو. وفاقی کابینہ کا کسی کانٹریکٹ ملازم کو فارغ نہ کرنے کا فیصلہ. 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے ٹاسک فورس قائم. اسحاق ڈار کے شریک ملزم صدر نیشنل بینک سعید احمد برطرف. مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. صوبہ جنوبی پنجاب کی جانب پہلا قدم. سیاسی اتفاق رائے کے لیے کمیٹی قائم. 100 روزہ پروگرام پر تیزی سے عمل درآمد کا فیصلہ. خواتین کی وراثت میں حصے کے لیے قوانین بنانے کا اعلان. اس بار حکومت اور فوج ایک ہی کتاب ایک ہی صفحے پر ہیں. فواد چودھری کی نیوز بریفنگ. العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے احتساب عدالت پیشی. خواجہ حارث آج بھی واجد ضیاء پر جرح جاری رکھیں گے. تمام حزبی اختلاف کا ایک امیدوار کس صورت میں ممکن ہوگا؟ اس چیز کو اگر ہم طے کر لیں تو انشاءاللہ العزیز رات بیچ میں ہے، ہم اس مسئلے کے حل پہ قادر ہو جائیں گے. صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے اپوزیشن آپس میں لڑنے لگی. فضل الرحمان کی پھونکے بے اثر. اعتزاز احسن ہی امیدوار ہوں گے. جیالے ڈٹ گئے. الٹی چال چلتے ہوئے مولانا سے ہی دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا. اسکروٹنی کا عمل آج ہوگا. 65 کی جنگ کے ہیرو سپاہی مقبول حسین انتقال کر گئے. آج فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. 40 سال بھارتی جیل میں قید رہے. دشمن نے ہر حربہ آزمایا لیکن پورے جذبہ ایمانی سے ڈٹے رہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا عوامی مقامات پر آویزاں کی جائیں گی. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پریس بریفنگ. 6 فارن منسٹرز ہیں OIC کے، ان کو خطوط ارسال کیے اور پاکستان کا موقف اور ہماری جو اضطراب کی کیفیت ہے اس سے انہیں آگاہ کیا. نہ صرف انہیں بلکہ سیکرٹری جنرل جو ہے OIC کے، انہیں خط لکھا. جو نیو یارک کی سائیڈ لائنز پر کاؤنسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی. مسلمانوں کے جذبات روندنے والوں کا گھر بھی متاثر ہوگا. وزیر خارجہ کا ڈچ ہم منصب کو پیغام. گستاخانہ خاکوں پر فوری OIC کا اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ. ایسے اقدامات سے نفرت اور عدم برداشت کو تقویت ملے گی. شاہ محمود قریشی کی گفتگو. خیبر پختونخوا کی ٹیم تیار. پہلے مرحلے میں 12 وزراء اور 2 مشیر حلف اٹھائیں گے. تقریب 11 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. وزیر اعلیٰ محمود خان بھی شریک ہوں گے. لوڈ شیڈنگ کا لوڈ اوور لوڈ. پنجاب کے مختلف شہروں میں 9 گھنٹے بجلی بندش. کاروبار بری طرح متاثر. کراچی اور خیبر پختونخوا میں بھی عوام کی نیندیں حرام. آبی تنازعات. پاک بھارت 2 روزہ مذاکرات آج اسلام آباد میں شروع ہوں گے. بات چیت میں کسی خاطر خواہ پیش رفت کا امکان نہیں ہے.
के आगाज में बड़ी खबर देंगे आपको। बड़ी अदालत में आज बड़े केस की समाअत होगी। एनआरओ पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बैरून मुल्क कोई जायदाद है ना बैंक अकाउंट। आसिफ अली जरदारी ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। ये अहम केस है जो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक बार ज़ेरे समाअत आया था जब एनआरओ को कल अदम करार दे दिया गया था। तो आज एक बार फिर इस केस की समाअत होने जा रही है। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की आज फिर समाअत है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में एक और पेशी हुई है। उन्हें सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल से एहतसाब अदालत में लाया गया है। आपको बताएं कि आज की समाअत में भी ख्वाजा हारिस की वाजिद ज़िया पर जिरह जारी रहेगी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक, हमारे साथ मौजूद होंगे। उससे पहले आपको बताएं कि अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की आज फिर समाअत हो रही है। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में एक बार फिर तलब किया गया है। सख्त सिक्योरिटी में उन्हें अडयाला जेल से एहतसाब अदालत मुंतकिल किया गया है। इससे पहले भी जो समाअत हुई उसमें जिरह का सिलसिला जारी रहा और आज भी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मलिक अरशद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत कर रहे हैं। इसके साथ साथ गवाह वाजिद ज़िया भी अदालत में पेश होंगे और साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस JIT सरबराह पर जिरा करेंगे। गुज़िश्ता 2 समाअतों से जिरा का ये सिलसिला जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक। यासिर, बताएगा आज की अदालती कार्रवाई के बारे में। आज बिल्कुल, आज भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एहतसाब अदालत पहुंचाया गया है। आज 6ठी मरतबा वो पेश हो रहे हैं एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के रूबरू। और आज की समाअत की अगर बात की जाए तो वाजिद ज़िया जो है वो आज भी तीसरे रोज़ वाजिद ज़िया पर ख्वाजा हारिस जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील हैं आज तीसरे रोज़ भी जिरा जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और आज जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद थे तो इसी दौरान मुशाहिद हुसैन सैयद और दीगर लीगी रहनुमा जो है वो भी मौजूद थे। तो मुशाहिद हुसैन सैयद की जानिब से कहा गया कि जो वाजिद ज़िया अपने हमरा बक्से लेकर आते हैं जिनमें रिकॉर्ड मौजूद होता है उनको देखकर वो बोले कि इन बक्सों को चेक कर लें, इनको ताले लगे हुए हैं या नहीं, कहीं ये ना हो इसका भी मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज कर दिया जाए। तो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो आज कमरा अदालत में होती रही है। लेकिन इस वक्त बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ हो चुका है। आज तीसरे रोज़ ख्वाजा हारिस वाजिद ज़िया पर जिरा कर रहे हैं और आज कभी इम्कान यही है कि आज के रोज़ जो जिरा है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और अब से यासिर मलिक आपने अपडेट किया। और अब बात सदारती इंतखाब की, जिसके लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल आज जारी रहेगा। आरिफ अलवी, एतजाज एहसन इलेक्शन कमीशन पहुंचे। उनका कहना है कि फजलुर रहमान दस्तबरदार हो जाएंगे। एतजाज एहसन कामयाबी के लिए भी पुरुमीद दिखाई दिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि PTI के वोट भी पड़ेंगे। एतजाज एहसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं जो सदारती इंतखाब में हिस्सा लेंगे, जबकि हुकूमत इत्तेहाद की नुमाइंदगी आरिफ अलवी करेंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाकिर सोरंगी से। शाकिर सोरंगी, स्क्रूटनी का अमल तो आज मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद अगला मरहला क्या होगा? जी बिल्कुल, स्क्रूटनी का अमल अभी शुरू हुआ है। एतजाज एहसन अपने पार्टी रहनुमाओं के हमरा खुर्शीद शाह, रजा रब्बानी, शेरी रहमान और दिगर जो है उनके साथ है। एतजाज एहसन ने मुख्तसर सी गुफ्तगू भी की है कि मौलाना फजल रहमान उनके हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। उनको उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं, PTI के भी वोट उनको पड़ सकते हैं। वो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश हुए हैं और चीफ इलेक्शन एतजाज एहसन के कागजात नामजदगी पर शाहिद औरकज़ई ने एतराज जमा कराया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पता किया कि शाहिद औरकज़ई यहाँ है, मौजूद पता कर रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी चल रही है। और तहरीक इंसाफ के जो आरिफ अलवी हैं वो भी पहुंचे हैं अपने पार्टी रहनुमाओं के हमरा। स्क्रूटनी का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये 4 सितंबर को इंतखाबात होंगे। 4 सितंबर को इंतखाबात तो होंगे। शाकिर, कुछ इतलात ये भी थी कि वो जो मुलाकातें हैं उसमें शायद कोई हल निकल आए, तो फजलुर रहमान साहब भी यकीनन आज पहुंचेंगे, उनको भी आज स्क्रूटनी के अमल में आना होगा। तो कोई गुफ्तगू शुनीद हुई और मामलात कुछ तय होते नजर आएंगे या अलग अलग ही उम्मीदवार होंगे?
देखें, जो रात मुलाकात हुई थी मौलाना फजल रहमान के साथ पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की, उसमें तो कोई हल निकल नहीं आया था और सिर्फ उम्मीद का इजहार किया गया था दोनों तरफ से कि उम्मीद है कि कोई एक उम्मीदवार, मुत्तफिका उम्मीदवार अपोजिशन का आ जाएगा। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर, आपने हमें अपडेट किया। इस वक्त पीपल्स पार्टी के नाम से सदारती उम्मीदवार एतजाज अहसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कर लिए और मैं मशकूर हूँ अपनी पार्टी की क़यादत का, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, और मेरे साथ जो तशरीफ़ लाए हैं नैयर बुखारी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, खुर्शीद शाह साहब, रज़ा रब्बानी साहब, मोहतरमा शहर बानो साहबा और चौधरी मंजूर साहब, कमर रमान कैरा साहब, जिन्होंने मेरे साथ आके और ये कागजात आज फाइल किए हैं, और हम इंशाअल्लाह इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। अब कोई सवाल आपका? चलो यार, कोई नहीं आएगा तो सबको ना खराब करो, बस करो। देखिए, ये सीक्रेट बैलेट है, जिसका मतलब है ये ज़मीर का वोट है, ये पार्टी का वोट नहीं है। पार्टी के आइन के तहत सियासी जमात के 3 वोट होते हैं। आर्टिकल 63A में 63A में आइन मजबूर करता है मेंबर्स को कि वो पार्टी के हक में वोट दें, पार्टी उम्मीदवार या पार्टी पोजीशन। एक आइनी तरमीम पे, दूसरा बजट पे, और तीसरा इलेक्शन चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के। ये 3 वोट हैं जो पार्टी के वोट हैं। ये सीक्रेट बैलेट जो है ये ज़मीर का वोट है। और पीटीआई के मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, बीबियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो बेटे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो इस वक्त, और ये वक्त है उनके लिए इंसाफ करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों के दरमियान भी इंसाफ करना है। अब इंसाफ करने में मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने, और मुझे इसका इंदिया है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त ये इस वक्त परेशान हैं अपनी पार्टी की बहुत सारी सियासी फैसलों के, जिन पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस वक्त, ये उनका अंदरूनी मामला है। पर दूसरी जमातों के, यहाँ तक कि जमीयत उलमाए इस्लाम के ऐसे साथी हैं जो वोट इंशाअल्लाह ताला मुझे डालेंगे अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक। ऐसा कोई इम्कान है कि अपोजिशन का एक कैंडिडेट अब भी हो सकता है? ऐसा कोई इम्कान है? 30 तारीख तक टाइम है, 12 बजे। जी, हमारी कोशिश ये है, हमारी कोशिश। मैं इस बात में नहीं कुछ ये कमेंट करना चाहता। मौजू कौन है कौन नहीं है ये वोटर्स ने फैसला करना है। और इसमें हमें ये एक डिसएडवांटेज ज़रूर है कि अपोजिशन की जानिब से इत्तफाक राय से उम्मीदवार नहीं आए और इत्तफाक अभी तक नहीं हो सका। पर इंशाल्लाह इसमें भी इत्तफाक हो सकता है, हो जाएगा। जब मौलाना साहब को हमने दरख्वास्त की है और उन्होंने कहा रात जिस मामले में एक रात पड़ती हो उस मामले को कभी हतमी नहीं समझना चाहिए, और उनके मुताबिक ये हतमी नहीं है जो ये मामला है। और इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई मामला निकलेगा। हमारी तरफ से ज़रा मुश्किल ये है कि जब हम ये सोच रहे थे, और मैं ख़ुद अपनी पार्टी से कह रहा था कि कोई कंसेंसस कैंडिडेट अगर बनता है तो ले आएँ, कि एक मुतालबा हो गया कि जी माफ़ी मांगे अडयाला जेल जाके। मैं बहुत लचकदार हूँ इन मामलों में, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन हूँ, 30 साल से अदालत में वकील के तौर पे 50 साल से पेश हो रहा हूँ। अदालत में हम झगड़े कर रहे होते हैं, बाहर निकल के वकील बार रूम में इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। पार्लियामेंट में हम झगड़े कर रहे होते हैं, कैफेटेरिया में इकट्ठे बैठ के मजाक कर रहे होते हैं। तो इसमें बड़ा, लेकिन
मेरी पार्टी ने ये फैसला किया कि ये मुमकिन नहीं है, ये बड़ा जागीरदाराना मुतालबा है जो मासुआए परवेज़ रशीद साहब के, जो कि एक बड़े दानिश्वर बाशऊर पढ़े लिखे Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.